Up to part 2 what we learn? The HTML coding to design online form. हमने HTML कोड की मदद से ऑनलाइन फॉर्म डिजाइन किया, but that you know is a very tedious job to design HTML form through HTML कोड, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ती है और बहुत सारी लाइंस लिखने के बाद आपको रिजल्ट सामने थोड़ा सा ही मिलता है. So now it's time to use some ready-made tools, and the best one that we need is IDE. IDE means इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया हुआ है. IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. So IDE is a software application that provides complete facility to programmer to develop the software. वो आपको हर एक फैसिलिटी देता है, and is provide the facility in GUI based, means graphical user interface. That means you get ready-made tools. आपको एडिटर भी मिलेगा, कंपाइलर भी मिलेगा, रिजल्ट भी सेम प्लेस पे आपको मिल जाएगा, एंड यू गेट आइकॉन्स एंड रेडीमेड बटन्स टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. जैसे कि HTML में आपने देखा कि आपके पास कोई रेडीमेड टूल्स नहीं था, सब कुछ आपको टाइप करना था. यू नीड टू टाइप ऑल द टैग्स एंड देन ओनली यू गेट द रिजल्ट. मगर IDE सॉफ्टवेयर में आपके पास सब फैसिलिटी होगी. And one of the most famous IDE is Composer that we are using in this class. Along with the Composer, Eclipse, JBuilder and NetBeans are also the examples of some open source IDE. I am talking about the open source, those who are free in cost or whose source coding is open for all. So to solve our problem, to make our work easier, we are always using IDE, Integrated Development Environment, that provides the facility to develop the software easily by using ready-made tools, editor and compiler. यहाँ पे हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कंपोजर है. तो लेट वी स्टार्ट. द कंपोजर is a free open source web development IDE. I repeat, Composer is an IDE but for web development. बहुत सारे IDE है. कुछ IDE जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होता है और कुछ IDE ही जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए होता है. तो कंपोजर इज ए free open source web development IDE just used to develop a website, to make our work easier to develop the website. And that I already told you, you all download the Composer software from www.composer.net is the name of website. Through that website you are able to download it freely. There is no cost, no charge, and it provides a web page editor which has a simple graphical interface. जैसे कि मैंने आपको कहा था GUI based होता है. IDE is always GUI based, in that you get the graphics and icons and the ready-made tools. And one more thing, that Composer is what you see is what you get type of editor. It's easy to remember the full form in place of short form. The short form is WYSIWYG. बहुत कम केस में ऐसा होता है कि जहाँ पे फुल फॉर्म ज्यादा याद रहता है, शॉर्ट फॉर्म कम याद रहता है. ये भी इनमें से ही आता है. सो बेटर यू रिमेंबर द फुल फॉर्म. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. विच काइंड ऑफ एडिटर इज कंपोजर? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. WYSIWYG. The complete web authoring system which web page development and web file management is required, and it supports site manager in that we easily navigate from one page to another page. यानी कि अगर मान लो कि आपके पास बहुत सारे पेज आपने बनाए हुए हैं, तो कंपोजर आपको साइट मैनेजर की फैसिलिटी देता है टू मैनेज ऑल दैट पेजेस इजीली. आप एक पेज में से दूसरे पेज में से तीसरे पेज में आपको नेविगेट करना है तो आप इजीली कर सकते हो. Even Composer supports the style sheet also, cascading style sheet that we are going to learn in the next chapter, जिसको हम शॉर्ट में CSS कहते हैं, और जावास्क्रिप्ट कोडिंग को भी सपोर्ट करता है. सो बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर है और रेडीमेड टूल्स भी है, जिससे हम कंपोजर से आसानी से वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. और हमको यहाँ पे यही सीखना है कि हाउ टू डिजाइन ऑनलाइन फॉर्म यूजिंग कंपोजर इजीली. And in the next chapter we are going to learn how to use style sheet as well as how to apply JavaScript coding for the form validation. So let's start the Composer software. First I am going to explain the different parts of the Composer page. अलग अलग अगर आप Composer की विंडो ओपन करते हो तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, क्योंकि कुछ पार्ट्स नए भी हैं, वो हम देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे ये पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ है, ओपन द व्यू मेनू एंड क्लिक ऑन शो और हाइड
to get all the tools. So by default so होता है, then you get all the tools by default. अगर उसको नहीं देखना है तो आपको hide option ले लेना है. यहाँ पे नाम दिया है composition toolbar, formatting toolbar 1, 2, everything is that I am going to explain now. Let's start with the explanation of the composer screen. देखते हैं composer screen में क्या क्या facility available है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. Here is a one image of the composer software. Everybody knows about this. This is the title bar of each and every program. हर प्रोग्राम में टाइटल बार होता ही है जिसमें प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम हमको मिलता है. और in the right side you get the close button, minimize and maximize button. Then afterward this part is your menu bar. In that you get all the menus. That also each and every software the common concept. सबसे पहले टाइटल बार के बाद मेनू बार ही होता है. फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, और उसके अंदर हमारे वर्क को आसान बनाने के लिए जो भी ऑप्शन है, कमांड्स है, that we get in the menus. Then afterward in Word, Excel and PowerPoint, this second toolbar this we called as a standard toolbar, but here in Composer this second part is called composition bar. इसको कंपोजिशन टूल बार कहते हैं, जबकि बाकी सब सॉफ्टवेयर में हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, मगर यहाँ पे कंपोजर में ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं कंपोजिशन बार. दैट मीन्स इन दैट यू गेट द फैसिलिटी टू क्रिएट ए न्यू फाइल, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, टू सेव योर फाइल, टू पब्लिश योर वेबसाइट, टू ऐड एन इमेज, टेबल, फॉर्म, एवरीथिंग यू गेट इन कंपोजिशन बार. दिस सेकंड पार्ट इज योर कंपोजिशन बार. Then here in Composer software you get two formatting bars, formatting bar 1 and formatting bar 2. This both the part is called, first one is the formatting bar 1, second one is the formatting bar 2. दोनों के दोनों टूल का यूज किस लिए होता है? To change the look of our web page, to change the font size, font color, alignments, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इफेक्ट्स, बुलेट्स, नंबरिंग, यानी कि लुक चेंज करने के लिए जो भी फैसिलिटी है वो आपको फॉर्मेटिंग बार 1 और 2 में मिलेगा. देन दिस इज योर साइट मैनेजर. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि साइट मैनेजर की फैसिलिटी आपको यहाँ पे कंपोजर में मिलेगी. टू नेविगेट योर पेजेस प्रॉपरली, इजीली. साइट मैनेजर से हमको फायदा क्या मिलता है कि हम जितने भी पेज ऐड करते जाएंगे वो पेज का लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा. आपको हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी. आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं एक पेज में से दूसरे पेज में जाकर. उसके बाद लेट वी सी, ये जो आपका सेंटर एरिया जो है पूरा, उसमें लेफ्ट साइड आपको साइट मैनेजर मिल रहा है और राइट साइड यू गेट द ब्लैंक पेज. द लेफ्ट साइड साइट मैनेजर एंड द राइट साइड यू गेट द ब्लैंक पेज. इन दैट यू डिजाइन योर वेब पेज. यानी कि ये ब्लैंक पेन है, सेंटर पेन. मगर ये ब्लैंक एरिया की साइड आप राइट साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू है एंड दैट इज कॉल्ड एडिट मोड टूल बार. दिस इज कॉल्ड एडिट मोड टूल बार. दिस इज अवेलेबल इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पेज पेन. ये आपका पेज पेन है, उसके बॉटम राइट कॉर्नर में आपको ये मिलेगा एडिट मोड टूल बार. इन दैट यू गेट 3 ऑप्शंस, नॉर्मल, preview and HTML mode. That I saw it in the real Composer demo, but right now I am just going to explain the basic parts of the Composer. In the bottom right corner you get one edit mode toolbar. By clicking on this drop down triangle, then you get 3 options, normal, preview and HTML. In a normal we are able to just see the design just like a preview mode and you get the outline of your full page, web page. आपको आउटलाइन भी मिलेगी. जबकि प्रीव्यू मोड में हाउ योर वेब पेज लुक्स लाइक इन ए ब्राउजर. ब्राउजर में आपका पेज कैसे दिखेगा वो आप प्रीव्यू में आप देख सकते हैं. मगर एक बात ध्यान रखनी है, प्रीव्यू मोड में आपने अगर कोई लिंक ऐड की है या कोई स्क्रिप्ट ऐड की है, वो कोई भी लिंक, स्क्रिप्ट या कोई भी बटन वर्क नहीं करेगा, वो सिर्फ दिखेगा. बट व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. कोई स्क्रिप्ट आपने अप्लाई की है तो वो स्क्रिप्ट चलेगी नहीं, सिर्फ कैसे दिखेगा ब्राउजर में आप सिर्फ उतना ही जान सकते हो, हाउ इट लुक्स इन ए ब्राउजर और हाउ इट लुक्स इन एन इंटरनेट
तो ये ध्यान रखना है कि प्रीव्यू मोड में लुक आप देख सकते हैं, बाकी कोई भी फंक्शनैलिटी आप यूज नहीं कर पाएंगे। एंड द थर्ड वन इज द HTML व्यू। HTML उसमें आएगा। दोज हु आर फेमिलियर विथ HTML, जो मैंने आपको ऑलरेडी अवेयर कर दिया है, आपको सिखा दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेक्स्ट से कौन सा कंट्रोल ऐड हुआ है, वो आपको वहां पे दिखेगा और वो येलो मार्कर से आएगा। येलो मार्कर से वो मैं आपको अभी डेमो भी दिखाता हूँ। तो ये हुई राइट कॉर्नर की, बॉटम राइट कॉर्नर की। सेम वे इन ए पेज पेन यू गेट 3 डिफरेंट टैब्स in your lower left corner of the page pane. This is called 3 different tabs. The very first one is the design. In a design tab, you just design your web page. When you open the composer, then by default you are in design tab. यानी कि आपको डिजाइन मोड में ही आपका composer ओपन किया हुआ मिलेगा। आपको डायरेक्ट डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है अपने वेब पेज की। सेकंड टैब इज योर स्प्लिट। मगर उससे पहले मैं आपको सोर्स टैब के बारे में बता रहा हूँ। थर्ड, सोर्स टैब। In a source tab, when you click on the source tab, then you get the full HTML coding of your design. यही बेनिफिट है IDE सॉफ्टवेयर का, कंपोजर का। आपको सिर्फ डिजाइन करनी है रेडीमेड टूल से, उसका HTML कोड ऑटो जनरेट होता है। नो नीड टू टाइप ए सिंगल HTML कोड हियर। तो आपको अगर देखना हो कि मैंने जो डिजाइन की उसका HTML कोड कैसा है या सोर्स में, तो आपको क्लिक करना है सोर्स में। यू गेट द फुल HTML कोड ऑफ योर डिजाइन दैट यू डिजाइन इन योर डिजाइन टैब। आपने डिजाइन टैब में जो भी डिजाइन किया है उसका HTML कोड आपको सोर्स कोड में मिलेगा। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट टैब? स्प्लिट टैब मतलब मैं मेरी डिजाइन में से जो टूल सिलेक्ट करूंगा, मुझे उसी एरिया में नीचे की तरफ उसका HTML कोड दिखेगा। यानी कि योर पेज पेन इट डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स। इन अपर पार्ट यू गेट योर डिजाइन एंड इन द बॉटम पार्ट यू गेट द HTML कोड ऑफ योर डिजाइन। मगर पूरा का पूरा सोर्स कोड एक साथ नहीं दिखेगा। जो एरिया आप सिलेक्ट करोगे वही एरिया का HTML कोड पेज पेन के अंदर ही नीचे के पोर्शन में दिखाई देगा। यार दैट मींस स्प्लिट टैब इज गोइंग टू स्प्लिट योर पेज पेन इन 2 पार्ट्स, अपर एंड बॉटम। अपर पार्ट में आपकी डिजाइन दिखेगी एंड बॉटम पार्ट में आपके HTML कोड पर्टिकुलर सिलेक्ट किए हुए पोर्शन का मिलेगा। जबकि सोर्स टैब में पूरा का पूरा HTML कोड एक साथ मिलेगा। So this is the basic introduction of the Composer software. When you open, then you just keep remember these points in your mind. आपको पता होना चाहिए कि कौन से parts का क्या use है। Now in real life, I just open the Composer. I already opened the Composer software, and now I am going to explain. I already opened that one. तो आपको यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ये टाइटल बार है, ये मेनू बार है, जिसके अंदर अलग अलग कमांड्स और ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये है आपका कंपोजिशन बार, जैसे कि मैंने कहा था, जिसमें आप व्हाट इज द यूज ऑफ कंपोजिशन बार? टू क्रिएट द न्यू फाइल, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, टू सेव योर फाइल, टू ऐड a table or image or form. And then we have 2 formatting toolbar, formatting toolbar 1, formatting toolbar 2 to just change a look. और ये रहा आपका साइट मैनेजर। सपोज यू डोंट वांट द साइट मैनेजर इन योर पेज, आपको उसको हाइड करना है। देन द शॉर्टकट की टू हाइड और शो योर साइट मैनेजर इज F9। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस F9, तो वो वहां से हाइड हो गया, चला गया। नाउ अगेन आई प्रेस F9, यू गेट दैट साइट मैनेजर अगेन। यानी कि ऑन और ऑफ करने का एक ही की है, F9 इज द शॉर्टकट की टू हाइड और शो योर साइट मैनेजर। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, ये आपका पेज पेन है बॉटम राइट कॉर्नर में। व्हेन यू क्लिक, दिस इज कॉल्ड एडिट मोड टूल बार। उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्रीव्यू, नॉर्मल एंड HTML टेक्स्ट। मैं HTML टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। हियर यू गेट द येलो मार्कर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कौन से एरिया से कौन सा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है HTML का, वो आपको पता चल जाता है, वो ये येलो मार्कर से। इट्स शोन इन द येलो मार्कर। अभी मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया, इसलिए आपको प्रीव्यू या नॉर्मल में कुछ आइडिया नहीं आएगा। और फिर हम जाते हैं यहाँ पे डिजाइन में। मैं हूँ अभी बाय डिफॉल्ट, मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट वी आर इन द डिजाइन मोड। उसके बाद है स्प्लिट। नाउ यू आर एबल टू सी हियर इट डिवाइड्स इन द 2 पार्ट्स। अपर पार्ट डिजाइन का होगा और नीचे उसी का कोडिंग। तो अभी मैं सिर्फ
पेज पार्ट में हो, और आपको पता है कि HTML का मेन पेज इज योर बॉडी टैग, तो यहाँ पे बॉडी टैग दिखा रहा है नीचे। And if I want to see the full source code, full HTML code of my current work, then you click on source. तो अभी तक मैंने जो भी काम किया है, हालांकि कुछ काम नहीं किया है, मगर फिर भी एक ब्लैंक पेज है, तो इसमें इतना कोडिंग पहले से किया हुआ है। जैसे ही मैं काम करता जाऊंगा, डिजाइन करता जाऊंगा, यहाँ पे कोडिंग ऑटोमेटिक जनरेट होगी। नो नीड टू राइट एनीथिंग। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ IDE सॉफ्टवेयर, एंड कंपोजर इज द बेस्ट सुटेबल वेब डेवलपमेंट IDE, जो मैंने आपको ऑलरेडी थियरी पोर्शन में बताया हुआ है। नाउ हियर फर्स्ट we are going to start something about this design, and then I want to show you the coding, क्योंकि मुझे बेसिकली आज आपको ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ कंपोजर वर्क्स। तो पहले मैं एक यहाँ पे सिंपल एक कुछ लिख रहा हूँ, सपोज रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे डिजाइन करना है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। देन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, आई एम गोइंग टू चेंज द फॉन्ट साइज, सपोज एरियल ले लिया। देन फॉन्ट साइज यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ उसको, बोल्ड इफेक्ट दे दी, अंडरलाइन भी दे दी, और सेंटर अलाइनमेंट भी दे दिया। तो मैंने यहाँ पे जी लग दी। उसके बाद मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मेरा फॉर्म। आई वॉन्ट टू स्टार्ट द फॉर्म डायरेक्टली, इट्स शोन विद रेड डॉटेड लाइन। अभी जो आपको मैंने जो भी ऐड किया वो रेड डॉटेड लाइन में दिख रहा है। और उसका स्प्लिट कोड में जाऊंगा तो मैंने यहाँ पे स्मॉल टैग और बिग टैग का यूज किया है यहाँ पे, इसलिए आपको यानी कि आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज, इसलिए वो स्मॉल टैग और बिग टैग आ रहा है। वो HTML का एडवांस है। नाउ आई वांट टू स्टार्ट द फॉर्म, तो उसके लिए भी रेडीमेड टूल्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा सिंपल है। फॉर्म यहाँ पे आपको बता रहा है कॉम्पोजिशन बार में, ये ट्राइंगल पे क्लिक कीजिए, डिफाइन फॉर्म। फॉर्म में से डिफाइन फॉर्म ऐड करने के लिए फॉर्म मेनू में से डिफाइन फॉर्म लेना है। यू जस्ट गिव ए नेम टू योर फॉर्म। अभी मैं जो भी डेमो दिखाऊंगा उसमें मैं नाम कंपलसरी दूंगा, बिकॉज इन नेक्स्ट चैप्टर जावास्क्रिप्ट इज कंपलसरी टू गिव ए नेम टू योर ऑन द कंट्रोल फॉर द आइडेंटिटी। सभी कंट्रोल को नाम देना जरूरी है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैं फॉर्म का नाम दे रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे नाम मैंने दिया डेमो में, डी मैंने कैपिटल किया है। ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिए, डेमो में मैंने डी यहाँ पे कैपिटल दिया है। एक्शन URL में भी मैं demo.html वही लिख रहा हूँ। आपको पता है कि एक्शन में हम क्या करते हैं, एक्शन मेथड में वी आर जस्ट गिविंग ए नेम ऑफ फाइल इन विच वी आर गोइंग टू स्टोर अवर डेटा। कौन सी फाइल में हमको डेटा स्टोर करना है वो फाइल का नाम, और मेथड में सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके। मैं अभी एक और चेंजेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह पूरा निकाल रहा हूँ। वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने लिख दिया, इसकी फॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया, और उसको मैंने ऐड कर दिया सेंटर में। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये भी आपको नहीं करना है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने डिलीट कर दिया, डायरेक्ट में मुझे फॉर्मेट करना है, ऊपर की एक लाइन आप फ्री छोड़ दो, एक या दो लाइन आप फ्री छोड़ दो, फॉर जस्ट गिवन द टाइटल आफ्टरवर्ड्स। अभी मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, फॉर्म डिफाइन फॉर्म, फॉर्म का नाम मैं दे रहा हूँ डेमो, डी कैपिटल किया है मैंने यहाँ पे। एक्शन में उसी नाम के पीछे .html कर दो, गेट ओके। I want to explain one concept to you, that's why I remove that registration form. क्या मुझे एक्सप्लेन करना था कि when you add the form then you get one dotted line surrounding your page, that is a special color used for a form, यानी कि bluish line दिख रही है आपको। ये dotted line अगर नहीं आ रही है मतलब समझ लो कि आपका फॉर्म ऐड नहीं हो रहा है। That once again I am going to highlight this one, आपको ये सराउंडिंग बॉर्डर दिख रही होगी डॉटेड लाइन जो थोड़ी ब्लूइश है, उसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म ऐड हो चुका है। नाउ ईच एंड एवरी अदर कंट्रोल्स आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस डॉटेड लाइन ओनली, इसके अंडर ही होना चाहिए, बिकॉज फॉर्म इज ए कंटेनर।
फॉर्म के रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स होंगे वो फॉर्म के अंदर ही ऐड होने चाहिए, बाहर होगा तो उसकी इफेक्ट इतनी नहीं आएगी। तो अभी एक और चीज जो इससे पहले मैंने आपको डेमो दिया था कोडिंग में, तो उसमें मैंने कुछ ज्यादा यूज नहीं किया था, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द बेसिक कोडिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म डिजाइन। तो उसमें ज्यादा मुझे डिटेलिंग नहीं करना था, सिलेबस में है भी नहीं। और आपने वो फॉर्म का रिजल्ट अगर देखा होगा तो वो फॉर्म में सभी कंट्रोल्स जो है वो अलाइन नहीं थे प्रॉपर, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द टेबल। यहाँ पे मैं टेबल यूज करूंगा। तो यू क्लिक ऑन द टेबल, मैं सिर्फ 2 कॉलम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 कॉलम। वाई? बिकॉज इन द फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट साइड कॉलम में मैं क्या ऐड करूंगा, एक लेबल दूंगा, यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। और सेकंड कॉलम में मैं कंट्रोल ऐड करूंगा फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट। आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वन लेबल कंट्रोल इज गिवन। सो हाउ टू ऐड अ लेबल? सो अगेन यू ओपन दिस फॉर्म, देन यू टेक define label. To add a form we take define form, and to add a label define label. अभी आप नाम दे दो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया यूजर नेम। उसके सामने मुझे कंट्रोल ऐड करना है। कंट्रोल कैसे ऐड करेंगे? दैट मीन्स यूजर नेम, फॉर यूजर नेम आई वांट टेक्स्ट बॉक्स। तो क्लिक ऑन फॉर्म, और इनपुट टैग रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं, कौन से कंट्रोल आते हैं इनपुट टैग से? टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, रीसेट बटन। इनमें से कुछ भी ऐड करना हो तो आपको फॉर्म मेनू में से आपको लेना है फॉर्म फील्ड, इनपुट टैग के लिए फॉर्म फील्ड। और यहाँ पे आपको वही सब कंट्रोल्स मिलेंगे जो इनपुट टैग से ऐड होते हैं। टेक्स्ट, पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट, रीसेट, फाइल, हिडन इमेज, बटन। तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा। उसका मैं नाम दे रहा हूँ नेम। इनिशियल वैल्यू अगर आप कुछ मेंशन कर रहे हो तो वो टेक्स्ट बॉक्स में पहले से ही लिखी हुई आएगी। अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, वो मैं आपको नेक्स्ट एडवांस डेमो में आपको दिखाऊंगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। नीचे अगर आप यहाँ पे है फर्स्ट रो में, मैंने सेकंड रो में आ गया, इसमें मैं लेबल ऐड करना चाहता हूँ। वापस फॉर्म, डिफाइन लेबल, और इस बार मैं लेबल दे रहा हूँ पासवर्ड। और सेकंड कॉलम में, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में मैं ऐड करूंगा कौन सा कंट्रोल? पासवर्ड कंट्रोल। और पासवर्ड भी किससे ऐड होता है? दैट वी आल्सो ऐड यूजिंग इनपुट टैग। सो फॉर दैट आल्सो वी टेक फॉर्म फील्ड। दिस टाइम आई टेक पासवर्ड, उसको भी मैं नाम दे रहा हूँ PWD, मैंने नाम दे दिया, एंड क्लिक ऑन ओके। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। नाउ आई एम इन सेकंड रो, देयर इज नो मोर रो आफ्टरवर्ड। कोई दूसरी रो दिखाई नहीं दे रही है। यू जस्ट प्रेस सिंपली यू प्रेस टैब की, तो एक और नई रो ऐड हो जाएगी। ऑटोमेटिक रो ऐड होती है, आपको टैब की प्रेस करना है। लास्ट सेल में जाके टैब की प्रेस करने पर ऑटोमेटिक नई रो ऐड हो जाएगी। और अभी मैं फिलहाल और कुछ नहीं कर रहा हूँ आगे, इतने का पहले कोडिंग आपको दिखा देता हूँ। नाउ वी सी द सोर्स हियर। नाउ लेट यू सी दिस मेनी लाइंस ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय कंपोजर। देखो मैंने फॉर्म टैग स्टार्ट फॉर्म ऐड किया है, तो फॉर्म टैग यहाँ पे आ रहा है। फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट, एक्शन इज इक्वल टू डेमो, नेम इज इक्वल टू डेमो। देन आफ्टरवर्ड आई ऐड ए टेबल, तो टेबल टैग यूज किया। फिर टेबल के अंदर रो ऐड करने के लिए TR टैग यूज होता है, रो के अंदर सेल ऐड करने के लिए TD टैग होता है यूज। सब कुछ अपने आप ऐड हो रहा है। और मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट नेम इज इक्वल टू नेम। टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स अगर ऐड करना हो तो उसके लिए टाइप एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे टाइप नहीं लिखा है। जबकि अगर आप पासवर्ड चेक करेंगे तो इनपुट नेम इज इक्वल टू PW एंड टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखा है। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अलावा कोई भी कंट्रोल आपको यूज करना हो तो टाइप इज इक्वल टू करके आपको वो कंट्रोल का नाम मेंशन करना होगा। ये मैंने HTML कोड में आपको सिखाया था। अभी मेरा ये डेमो का एक ही मेन पॉइंट है कि आपको मैं सिखाऊंगा हाउ कंपोजर सॉफ्टवेयर वर्क्स फॉर यू, कैसे काम करना है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिजाइन टैब, स्प्लिट टैब, सोर्स टैब,
Then now I am going to explain preview, यानी कि ब्राउजर में आपका इसी तरह से दिखने वाला है ये टेबल, यानी कि ये फॉर्म नॉर्मल में गया और अभी मैं जा रहा हूँ HTML टैग्स में। HTML टैग लिया तो आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज, यानी कि कौन सा कंट्रोल मैंने कौन से टैग से ऐड किया हुआ है। ओके, दैट इज द वेरी गुड हेल्प फॉर अस। वी जस्ट कम टू नो विच पर्टिकुलर टैग दैट HTML यूज टू ऐड दैट पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पे आपको देखो मैंने टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया तो इनपुट टेक्स्ट ऐड हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स भी इनपुट टेक्स्ट हुआ है, ये मैंने लेबल बनाया है तो लेबल है, ये फॉर्म है, ये टेबल है। So this is the main benefit. But if you know something about the HTML, then only you are able to understand this one. So this is the use of HTML text that I just change it and take normal again. Split ले रहा हूँ मैंने, मान लो कि ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है, स्प्लिट ले रहा हूँ, then I get the coding of that particular text box only here. You see here. ये बेनिफिट रहता है स्प्लिट का पूरा सोर्स कोड एक साथ नहीं दिखेगा। जिसमें आपको मिस्टेक नजर आ रही है, यू जस्ट सिलेक्ट इट and check the coding of that part in the split at the bottom of your page pane. तो स्टूडेंट, आप मुझे लग रहा है कि अभी आपको कंपोजर यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इज वेरी इजी टू यूज एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक्स आवर वर्क वेरी इजी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज इन नेक्स्ट टाइम आई वांट टू डिजाइन द फुल फॉर्म यूजिंग कंपोजर सॉफ्टवेयर रेडीमेड टूल्स। अभी तो सिर्फ कंपोजर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स ऐड किए। नेक्स्ट डेमो में हम सीखेंगे हाउ टू ऐड ऑल द कंट्रोल्स, हाउ टू मैनेज इट। पूरा एक फॉर्म डिजाइन करेंगे और उसका मैं डेमो आपको दूंगा। बट बिफोर क्लोजिंग, यू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल द अदर ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल नेम इज प्रतीक सर, मेक कंप्यूटर लर्निंग इजी, and you click on the bell icon to notify you whenever I post any new tutorial for better learning. Thank you.